सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube चैनल कल्टीवेशन ऑफ माइंड ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ 7th ਲੈਕਚਰ ਇਸ ਚੈप्टर ਦਾ। ਜੋ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 6 ਚੈप्टर ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 6 ਦੇ 6 ਚੈप्टर ਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਵਿਦ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾइंड आउट कर रहे सी जो कि है अपने कोल हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन तो ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ QX ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ QX ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨॉन ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ ਰਾਜੇ yc प्लस yp ਦੇ। ਇੱਥੇ yc ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ 6th ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। yp ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ yc ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ yp ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾइंड आउट ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਿਵੇਂ ਫਾइंड आउट ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਟਾਈਪਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ QX ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ QX ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਆਫ ਫਾइंडिंग ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨॉन ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਇਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹਾਇਰ ਹੋਊਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪਸ ਨੇ। ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ d/dx ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ D ਤੇ d2/dx ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ D ਸਕੁਅਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ d-a ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ d-a ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ QX ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ e⁻ax ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ QX इंटू e⁻−ax इंटू dx ਦੇ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ d-a ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। d-a ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ d ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ ਆਊਗਾ a। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਚੀਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ D ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਉਹ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ -a ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
तो फिर वो काहदे बराबर होगा अपने को ई दी पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई दी पावर माइनस ए एक्स, ਇਹਦਾ इंटीग्रेशन कर देना। ਇੱਥੇ एक गल नोट करने वाली है, जो असी यूनीवर्सल मैथड यूज़ करांगे तो नोट ये करना है कि कोई भी आरबिट्रेरी कॉन्सटेंट जिहड़ा असी ऐड नहीं करना ਜਦੋਂ असी इंटीग्रेशन नूं सॉल्व कर लांगे। राइट हैंड साइड ते तुहानूं दिख रहा होना कि असी इंटीग्रेशन करांगे तो उस इंटीग्रेशन नूं जदों असी सॉल्व किया तो आपां उहदे विच कोई भी आरबिट्रेरी कॉन्सटेंट ऐड नहीं करना, क्योंकि असी ये पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, जनरल वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर रहे। ठीक है जी। तो इस तरह असी की करांगे, यूनीवर्सल मैथड अप्लाई करांगे। क्वेश्चन नाल समझते हैं, उहदे नाल थोड़ा ईजी हो जाता है। एग्जाम्पल है साडे कोल, कहते फाइंड द पर्टिकुलर इंटैगरल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पर्टिकुलर इंटैगरल फाइंड आउट कर ली, सब तो पहला असी की करांगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नूं सिंबॉलिक फॉर्म च लिख लांगे, जो कि अपने को आजू 4 कैपिटल डी स्केयर वाई प्लस 4 कैपिटल डी वाई माइनस 3y इज इक्वल टू ई दी पावर 2x ते y नूं अगर असी कॉमन कढ़ लीए तो अपने को ब्रैकेट च आ जाऊगा 4d स्केयर प्लस 4d माइनस 3 इज इक्वल टू ई दी पावर 2x। इसनूं चाहे तुसी इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हो। स्टार्टिंग दे विच की है, तुसी हर एक स्टैप नूं अप्लाई करके देखा करो, पर जदों तुहाडी प्रैक्टिस हो जाए उस तो बाद बहुत सारे स्टैप्स इहो जिहे ने जिहड़े जरूरी नहीं होंदे, एग्जाम दे विच मैंडेटरी नहीं है, तो तुसी की करना उन्होंने स्किप कर देना। पहला जो स्टैप की है सिंबॉलिक फॉर्म च बना लो, फिर उस तो बाद असी की किया सीगा कि ये फैक्टर बना लेने ने। तो फैक्टर बनावांगे तो साडे कोल की बन जूगा 4d स्केयर प्लस 6d माइनस 2d माइनस 3 इज इक्वल टू ई दी पावर 2x। चाहे फर्स्ट इक्वेशन नूं लिखा रहन दो, चाहे उस तो बाद उसके फैक्टर भी बना लो। तो की अपने कोल बन गया रजे y, इत्थे अपने कोल की बन गया 2d प्लस 3, ये फैक्टर बन गए, तो नाल अपने कोल की बन गया 2d माइनस 1 बराबर e दी पावर 2x। ठीक है जी। फिर अपने कोल रजे सैकेंड स्टैप की है, सैकेंड स्टैप साडे कोल की है कि जिहड़े असी फैक्टर बनाए ने उन्होंने डिनोमीनेटर च लिख लो 2d प्लस 3 ते नाल अपने कोल की है 2d माइनस 1 इंटू की करना है QX, तो QX की वैल्यू कितनी है e दी पावर 2x। ये असी फॉर्म तैयार कर ली। ये फॉर्म तो बाद मैं क्या सीगा जो इस तरह की फॉर्म तैयार हो जाए अपने कोल, आ देखो सैकेंड स्टैप के जो साडे कोल इस तरह की फॉर्म तैयार हो जाए, फिर आपां की कहांगे उन्होंने बराबर लिखांगे e दी पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ Q e दी पावर माइनस ax, है ना। ये क्या आ जाऊगा अपने को पर्टिकुलर इंटैगरल आ जाऊगा। लेकिन गल करिए इत्थे अपने को रजे 2 फैक्टर बन रहे हैं, तो दोनों फैक्टर के वास्ते आपां नूं अलग अलग फाइंड आउट करना पैना। किस तरह? सब तो पहला तो डी की पावर जी डी का कोफिशेंट जोड़ा उन्होंने 1 बनाओ। डी का कोफिशेंट जो असी 1 बनावांगे, इत्थों डी कॉमन आ गया तो इत्थे अपने को कितना आ जाऊगा रजे 3/2। इत्थों भी जोड़ा है अपने को 2 कॉमन आ गया, तो अपने को इत्थे की बन जाऊगा डी माइनस 1/2, तो मूहरे कितना आ जाऊगा अपने को 4, क्योंकि 2 ये कोफिशेंट बाहर आ गया तो 2 कोफिशेंट ये बाहर आ गया। नैक्सट साडा स्टैप की है कि असी डी माइनस ए की फॉर्म बनानी है, 1/d माइनस ए ई दी पावर 2x, इस तरह की फॉर्म बनानी है। ये अपने को 2 फैक्टर ने, तो दोनों फैक्टर के उपर असी एक ही टाइम पर अप्लाई नहीं कर सकते, सानू अलग अलग जोड़ा उन्होंने सॉल्व करना पैना। तो मैं की करूँगा, पहला इसनू सॉल्व करूँगा क्योंकि ये मेरे को फॉर्म तैयार हो चुकी है ए वाली। फिर उस तो बाद मैं की करूँगा, जो आंसर आ गया उसनू ये नाल अप्लाई कर दूँगा क्योंकि ये भी फॉर्म तैयार है। पर इत्थे एक चीज़ जी अपने को नहीं बनी हुई वो की है कि अपने को इत्थे d + 3/2 है, तो आपां की चाहिए d माइनस ए। तो मैं अगले स्टैप के विच इसनू होर थोड़ा जा सिंपलीफाई करके लिख देना 4d माइनस 3/2 d माइनस 1/2 ई दी पावर 2x, इदा भी लिख सकता। तो मैं की करूँगा रजे इन्ने टर्म के उपर फॉर्मूला अप्लाई कर दूँगा। किहड़ा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई दी माइनस ax पावर, बाहर अपने को ई दी पावर ax होगा। ठीक है, तो अपने को इन्नी टर्म के उपर जो असी फॉर्मूला अप्लाई किया, तो मैं इधर लिख रहा कि आ जाऊगा 1/4 तो एज इट इज लिख रहा दिता जाए, ब्रैकेट 1/d माइनस 3/2 एज इट इज लिखा रहन दिता जाए,
तो आ टर्म अपने कोल की बन जूगी रजे, वो बन जूगी ई दी पावर। हुण इत्थे ए दी वैल्यू पहला फाइंड आउट करो, इनू कंपेयर करांगे जदों 1/d माइनस ए क्यू एक्स दे नाल, तो इत्थों ए दी वैल्यू अपने कोल आ जूगी 1/2 तो क्यू एक्स तो आपां नूं पता ही है ई दी पावर 2x दे रखा है। ठीक है, तो ए दी वैल्यू अपने कोल कितनी है 1/2, क्योंकि इत्थे माइनस ए है रजे, इत्थे माइनस 1/2 है, तो ए दी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो अपना फॉर्मूला की सीगा ई दी पावर ए एक्स, कहना मतलब x/2, फिर इंटीग्रेशन ई दी पावर कितना होगा अपने कोल 2x, क्योंकि अपने कोल क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है ई दी पावर 2x, नाल क्या जो ई दी पावर माइनस ए एक्स 1/2x इंटू डी एक्स। तो इत्थों आप कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। दोबारा देख लो, असी सब तो पहला की किया सिंबॉलिक फॉर्म बना ली, सिंबॉलिक फॉर्म बनाने तो बाद फैक्टर बना ली। तुसी फैक्टर इत्थे भी बना सकते हो, आप पूरी दी पूरी वैल्यू नूं जिहड़ा इत्थे लिख दो, तो इस तो बाद आ फैक्टर बना लियो, आ सारे फैक्टर बना के तो अपने कोल कुछ इस तरह की सैकेंड जी अपने कोल स्टैप विच जो मैं d+3/2 d-1/2 लिखी है फॉर्म, इस तरह की फॉर्म सूँ मिल जूगी। फिर उस तो बाद की किया असी 1/d-a की फॉर्म बनानी शुरू की, जिहदे लई मैनूं इत्थों माइनस जिहड़ा है कॉमन कढ़ना पिया, या मल्टीप्लाई कह सकते हो करना पिया, कॉमन कढ़ के उस तो बाद की अपने कोल 2 भी कॉमन कढ़ना पिया, क्योंकि ये 2 सीगा ना बाहर 4 आ गया जी। फिर अपने कोल क्या भी दोनों टर्म के उपर एक टाइम पर फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, इस करके असी इन्नी टर्म के उपर फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला की सीगा कि जो अपने कोल 1/d-a इंटू क्यू एक्स की फॉर्म बन जूगी, तो असी उसनों लिख सकते हैं ई दी पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर क्यू एक्स इंटू ई दी पावर माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, बार बार असी यही रिपीट कर रहे हैं ताकि साढ़े याद हो जाए गल। फिर जो असी ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिता ए की वैल्यू जी फाइंड आउट करके, तो साढ़े कोल इन्ना आंसर आ गया। हुण जदों तुसी इस इंटीग्रेशन नूं सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन नूं सॉल्व करके तुहाडे कोल एक वैल्यू आ जाऊगी, वो वैल्यू नूं तुसी की मनोगे, जिहड़ी वैल्यू आ जाऊगी उन्होंने की मानांगे क्यू एक्स। फिर इत्थे आ सारी वैल्यू की जगह पर, ठीक है, तुहाडे कोल सॉरी आ सारी टर्म की जगह पर कोई वैल्यू आ जाऊगी, उन्होंने क्यू एक्स मन के फिर दोबारा जिहड़ा तुसी आह सारी टर्म के नाल की अप्लाई करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फिर जो लास्ट से तुहाडे कोल आंसर आऊगा वो अपना की होगा पर्टिकुलर इंटैग्रल। तो इस करके रजे जो यूनीवर्सल मैथड है काफ़ी लेंथी है, तुम देख सकते हो कि पहला आ सारा इंटीग्रेशन सॉल्व करांगे, फिर एक फंक्शन आऊगा, फिर उस फंक्शन को क्यू एक्स मनांगे, फिर उस फंक्शन को क्यू एक्स मनने तो बाद दोबारा फिर तो आप फॉर्मूला अप्लाई करांगे, सॉल्व करांगे इंटीग्रेशन को, फिर जाके अपने कोल की बन जाऊगा पर्टिकुलर इंटैग्रल। तो काफ़ी लेंथी मैथड है, सारे फंक्शनस के उपर जिहड़ा सानू पेपर दे विच लगाउण दी जरूरत नहीं, इस करके मैं कुछ पर्टिकुलर टाइप्स बना लिया ने कि अगर तुहाडे कोल क्यू एक्स की वैल्यू ये आ जाती है, जो मैं डिसाइड कीतियां ने टाइप जो बनाई ने, मैं तो की डिसाइड कीतियां ने जो सानू सिखाई जांदियां ने वैल्यूज़, उन्होंने मैं टाइप्स दे विच बना के सोनू शॉर्टकट मैथड के थ्रू करवा दूंगा कि पर्टिकुलर इंटैग्रल असी अगर फाइंड आउट करना है तो उस टाइप के लिए क्यू एक्स की उस वैल्यू के लिए पर्टिकुलर इंटैग्रल की शॉर्टकट किमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक स्पैशल केस भी है, कहते मान लो तुहाडे कोल ए की वैल्यू 0 आ जाए, इत्थे मान लो तुहाडे कोल कल्ला डी हुंदा रजे, इत्थे आ ना हुंदा, या फिर इत्थे कह लो आ ना हुंदा, तो ए कितना आ गया अपने कोल 0, तो जो ए 0 है इत्थे भी ए 0, इत्थे भी ए 0, तो अपने कोल की बचा ई दी पावर 0 तो 1 होंदा आपां नूं पता, तो अपने कोल 1/d, क्योंकि ए इत्थे 0 हो चुका है, इंटू क्यू बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू डी एक्स। तो कहने का मतलब की है रजे कि जो डी अपने कोल न्यूमीनेटर च हुंदा तो वह मतलब हुंदा d/dx, मतलब डेरीवेटिव, तो जो अपने कोल डी डिनोमीनेटर च हुंदा वह मतलब हुंदा इंटीग्रेशन, नाल इत्थे अपने कोल क्यू है। हुण आपां की करांगे 1/d क्यू का मतलब है कि तुसी क्यू का इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, उही तुहाडे कोल आंसर आ जाऊगा। तो ये गल्लां जिहड़ियां यूज़ होणगियां, ये स्पैशल केस कई बार यूज़ होंदा पेपर क्वेश्चनस दे विच पेपर आ जाता हमेशा, नहीं तो फिर तुहानूं इदां कंसैप्चुअल क्वेश्चन बना के भी पूछ सकते हैं कि अगर आह वैल्यू 0 है तो दसो 1/d क्यू काहदे बराबर होगा, है ना। तो हुण शुरू करते हैं आपां टाइप्स बारे, जिहड़ियां मैं टाइप्स की गल कर रहा सीगा कि अगर अपने कोल क्यू एक्स की कुछ खास टाइप आ जाए, कुछ खास वैल्यू आ जाए, तो उहदे लई आपां शॉर्टकट किवें अप्लाई करांगे पर्टिकुलर इंटैग्रल फाइंड आउट करने लई। फस्ट टाइप है साडे कोल, कहंदे जे क्यू एक्स
बराबर आ जाए ई दी पावर ए एक्स के। अगर साढ़े कोल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्यू एक्स ई दी पावर ए एक्स ਤੇ आ जाए, मतलब कुछ भी पावर हो सकती है, 4x हो सकती है, 7x हो सकती है, 8x हो सकती है ना, कुछ भी पावर हो सकती है। तो उस टाइम के उपर असी की करांगे, सब तो पहला ये फॉर्म बनावांगे 1/f(d) इंटू ई दी पावर ए एक्स, फिर वो कादे बराबर आ जाऊगा 1/f(a) ई दी पावर ए एक्स। कहने का मतलब तुसी डी की जगह तो सिर्फ ए पुट कर दोगे ए फॉर्म बनाने तो बाद। क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर थोड़ी गल्लां होर भी क्लीयर हो जाएगियां। पहला क्वेश्चन है, कहते फाइंड द पर्टिकुलर इंटैग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। असी क्या भी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अपने को क्यू एक्स की वैल्यू ई दी पावर ए एक्स दे रखी है, तो यदा मतलब ये टाइप 1 है, यही पछाण है इस टाइप की। तो असी साडा सब तो पहला स्टैप की होगा कि असी फाइंड आउट करांगे सिंबॉलिक फॉर्म। पहला स्टैप सेम रहूगा, जो कि आजू 4d² प्लस 4d माइनस 3 तो y बाहर लिख लो, बराबर आ जाऊगा ई दी पावर 2x। तो ये अपने को सिंबॉलिक फॉर्म बन गई। जो सिंबॉलिक फॉर्म बन गई, फिर उस तो बाद असी की करना रजे, सैकेंड स्टैप की होगा। हुण इत्थे फैक्टर बनाने नहीं आ, असी सिंपली जिहड़ा साडे कोल सारा फंक्शन है, आ सारा जिहड़ा फंक्शन है इनू डिनोमीनेटर च लिख लेना है, 4d² प्लस 4d माइनस 3 तो नाल अपने की आ जाऊगा क्यू एक्स, जो कि है अपने को ई दी पावर 2x। आह फॉर्म जी असी अचीव कर ली, आह फॉर्म जी असी अचीव कर ली, 1/f(d) ई दी पावर ए एक्स। फंक्शन इन डी फॉर्म, फंक्शन इन डी फॉर्म इंटू ई दी पावर ए एक्स, जो अपन क्यू एक्स दे रखे वो दे रखा ई दी पावर 2x। तो कादे बराबर होगा, असी कहांगे पुट कैपिटल डी इज इक्वल टू ए। कहना मतलब कैपिटल डी की जगह तो असी की पुट करना है 2, क्योंकि ई दे नाल जिहड़ा है अपने को पावर दे विच एक्स लग्या होगा, तो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वही अपनी ए की वैल्यू होगी। असी इत्थों कंपेयर करके देख सकते हैं। तो ए की वैल्यू अपने को 2 है, इस करके डी की जगह तो असी की पुट करांगे 2 पुट करांगे। जो असी डी की जगह 2 पुट करांगे डिनोमीनेटर दे विच, तो साडे कोल वैल्यू आ जूगी 1/4 इंटू 2² प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3। तो जिहड़ा साडे कोल ई दी पावर है अपने कोल 2x कह लो, उहदा काम इत्थे खत्म हो जाता है। तुसीं उसनूं इस साइड के उपर भी लिख सकते हो। सिंपलीफाई करो रजे इसनूं, तो अपने कोल ई दी पावर 2x 1/4 इंटू 4 16 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 3। तो ई दी पावर 2x कादे बराबर आ गया 24 माइनस 3, कितना आ गया रजे नीचे अपने को 21 आ गया। तो आंसर आ गया ई दी पावर 2x डिवाइडेड बाय 21। ये अपने को पर्टिकुलर इंटैग्रल कढ़ लिया असी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बड़ा ही आसान है, सब तो पहला सिंबॉलिक फॉर्म बना लो। सिंबॉलिक फॉर्म बनाने तो बाद असी जो अपने को डी दी फॉर्म के फंक्शन बन चुका है उसनों डिनोमीनेटर च लिख लेना। डिनोमीनेटर च लिखण तो बाद असी क्या भी डी की वैल्यू जी है उसनों ए के बराबर पुट कर दो डिनोमीनेटर के विच। असी पुट कर दिता, पुट करन तो बाद साडे कोल की आ गया ई दी पावर 2x अपॉन 21, जो कि अपना रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटैग्रल। कुछ होर एग्जाम्पल्स भी कर लेने ताकि साडा डाउट क्लीयर हो जाए, क्योंकि एक जिहड़ी खास गल है वो मैं दसन जा रहा अगली एग्जाम्पल की हैल्प के नाल। क्वेश्चन लिख रहे कहते भी सावधानी इत्थे की सावधानी वरतनी है कि समटाइम्स रूल फेल्ड, लैट्स सी वट हैपन वैन द रूल फेल्स। कहते कई बार की होंदा है जिहड़ा असीं टाइप 1 दे विच रूल पढ़िया वो फेल हो जाता है, तो जो फेल हो जाता फिर की किवें उसनूं सॉल्व करना है, तो की रूल जिहड़ा है वो किवें फेल हो जाता उहदे बारे भी गल करते हैं। सब तो पहला असीं की कीता क्यू एक्स की वैल्यू देखी ई दी पावर ए एक्स है, असीं क्या ये टाइप 1 है, तो असीं इसनूं 1/f(d) की फॉर्म दे विच लिख लिया, जिन्हों असीं बराबर लिखा 1/f(a) ई दी पावर ए एक्स। ये सारा असीं सॉल्व किया सीगा, प्रोवाइडेड दैट f(a) बिकम्स 0। तुसीं अगर ध्यान दो तो पिछले क्वेश्चन दे विच जिहड़ा रजे जदों असीं डी की जगह तो ए पुट किया सीगा तो साडा फंक्शन जिहड़ा है नॉट इक्वल टू 0 आया सी। ई दी पावर 2x अपॉन 21 जिहड़ा है वो 0 के इक्वल नहीं आ सकता है ना। तो इत्थे पर कहते कई बार की हुंदा है साडा जिहड़ा आंसर है ई दी पावर 2x अपॉन 21 की जगह जे मान लो साडा फंक्शन की है 1/0 आ जाए, आंसर की है 1/0 आ जाए, जो कि अपने को नॉट डिफाइंड बन जाती है गल।
ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੂਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨॉन ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਨॉन ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ QX ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ e ਦੀ ਪਾਵਰ -x ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਕੈਪੀਟਲ D ਕਿਊਬ ਪਲਸ 1 y ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ e ਦੀ ਪਾਵਰ -x। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ d ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ e ਦੀ ਪਾਵਰ -x। ਨੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ d ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, a ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, -1। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ d ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -1 ਦਾ ਕਿਊਬ ਪਲਸ 1 e ਦੀ ਪਾਵਰ -x। ਤਾਂ ਅਸੀਂ d ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, -1। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, -1 ਪਲਸ 1 e ਦੀ ਪਾਵਰ -x ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 1/0 e ਦੀ ਪਾਵਰ -x। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਟਰਮ ਆ ਗਈ, ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਟਰਮ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਲ। ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਟਾਈਪ, ਤਾਂ ਰੂਲ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੈਪ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ। ਵੈਨ ਰੂਲ ਫੇਲਡ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 1/0 ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਐਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ D ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ D ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ a ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਪੀਟਲ D ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ a। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰੂਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਰੂਲ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਤੇ d/dt ਮਤਲਬ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ D ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ d ਨੂੰ a ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ d ਨੂੰ a ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਨਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ 1/0 ਅਨਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ x ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, d ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ D ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਲ ਫੇਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/0 ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੂਲ ਸਾਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1/0 ਫਾਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, d ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, d ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, x ਇੰਟੂ e ਦੀ ਪਾਵਰ -x ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ d ਕਿਊਬ ਪਲਸ 1 ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ D ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3d² ਪਲਸ 0 ਆ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ x ਨਾਲ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ D ਦੇ, d/dt ਆਫ d ਕਿਊਬ ਪਲਸ 1 ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, x
1/d स्केयर 3d² प्लस 0 लिखना नहीं लिखना एको गल ही है e ਦੀ पावर -x। तो हुण असी अगेन की करांगे राजे पुट करके देखांगे d = -1 जो कि अपनी a की वैल्यू है। फिर पुट करन ते की आ गया x 1/3 - 1 दा होल स्केयर e की पावर -x x/3 e की पावर -x ये की आ गया अपने कोल आंसर आ गया। तो की अपने कोल जिहड़ा है मैथड की है राजे कहते सब तो पहला तुसी सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड आउट कर लो। सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड आउट करन तो बाद जिहड़ा फंक्शन बन जाऊगा डी की फॉर्म दे विच उहनूं डिनोमीनेटर दे विच लिख लो। ई दी -x अपने कोल इत्थे QX की वैल्यू सी नाल मल्टीप्लाई करती। जदों ये फॉर्म बन जे उस फॉर्म बनन तो बाद डी की जगह ते असी पुट करना है ए की वैल्यू नूं जो कि असी कंपेयर कर लांगे इस फॉर्म के नाल। तो इस फॉर्म के नाल कंपेयर करके अपने कोल ए की वैल्यू -1 आ गई। ਇਹਦਾ मतलब असी कैपिटल डी की जगह पर -1 पुट करांगे। असी -1 पुट करता -1 पुट करन तो साडे कोल 1/0 अनडिटरमाइंड फॉर्म बन गई। अनडिटरमाइंड फॉर्म बनन तो बाद असी कहा भी इत्थे रूल की हो जाता है फेल हो जाता है। जदों इत्थे रूल फेल हो गया तो असी स्टैप याद रखना है कि न्यूमीनेटर नूं x नाल मल्टीप्लाई करना है तो डिनोमीनेटर नूं जिहड़ा डेरीवेटिव करना विद रिस्पैक्ट टू कैपिटल डी दे। डेरीवेटिव करन तो बाद दोबारा फिर असी कैपिटल डी की जगह पर ए वैल्यू पुट करनी है। जे दोबारा वैल्यू पुट करन ते भी साडे कोल 1/0 फॉर्म बनती है तो फिर दोबारा रूल फेल हो जाता है। दोबारा फिर असी इस स्टैप नूं अप्लाई करना है कहना मतलब न्यूमीनेटर नूं x नाल मल्टीप्लाई करना है तो फिर अपने कोल की बन जू x² बन जूगा न्यूमीनेटर दे विच। ते फिर नीचे की कर देना है जो डेरीवेटिव करके पहली बार आंसर आया सी उहदा एक बार होर डेरीवेटिव ठीक है जी। तो फिर अपने कोल जे फिर भी ना आवे फिर एक बार होर तो जदों तक साडे कोल 1/0 फॉर्म बननी नहीं हटती उदों तक असी इस स्टैप नूं अप्लाई करते जाना। उपर x² x³ x⁴ बन सकता है। नीचे साडे कोल 1 टाइम डेरीवेटिव सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव थर्ड ऑर्डर डेरीवेटिव इदा बनता जाऊगा ठीक है। तो फिर उस तो बाद की अपने कोल लास्ट जो वैल्यू आऊगी वो आऊगी पार्टिकुलर इंटैगरल की। नैक्सट है साडे कोल टाइप 2। टाइप 2 दे विच क्या गया जे साडे कोल QX की जे वैल्यू अपने कोल cos AX या फिर sin AX की फॉर्म च आ जाए ना इत्थे tan की गल की है ना इत्थे cot की गल की है ना cosecant की ते ना secant की सिर्फ और सिर्फ गल की है cos ते sin की। फंक्शन दो फंक्शन ही लेते हैं cos फंक्शन ते sin फंक्शन। जे साडे कोल cos आ जाए sin आ जाए तो उन्होंने असी एक ही टाइप दे विच इनकलूड किया है। तो एक ही तरह के स्टैप्स फॉलो करने ने वो क्वेश्चन नूं सॉल्व करने लई। सब तो पहला की करना है उसनों इस फॉर्म दे विच बना लेना है। अगर अपने कोल cos x या फिर sin x आ जाए cos AX या फिर sin AX आ जाए QX के फंक्शन दे विच तो उसनों सब तो पहला की है इस फॉर्म दे विच बना लो कि 1/f(d²) मतलब जो फंक्शन साडा है वो d² की फॉर्म दे विच होना चाहिए मतलब d² होवे उहदे विच। अगर d² नहीं है तो तुसीं कहोगे फिर की करना है फिर वो बारे भी सीखते हैं भी की करना है देख लें। फिर साडे कोल इत्थे स्पैशल केस वाला फार्मूला याद आऊगा जो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा देख लें। फिर जदों अपने कोल रजे इस तरह की फॉर्म तुहाडे कोल बन गई तो कहते तुसीं कैपिटल d² की जगह पर की पुट करना है -(a²) कहना मतलब a² का a का स्केयर करके वो अगे माइनस लगा देनी है। एक हुंदा -(a²) एक हुंदा -((a²) ठीक है दोनों चीज़ों च फर्क है। तो -((a²) असी करना गा की वैल्यू पुट करनी है d² की। जो d² की वैल्यू पुट करांगे तो जे अपने कोल 1/0 फॉर्म बन गई तो तुसीं की कहोगे रूल फेल हुंदा। फिर असी x नाल मल्टीप्लाई करांगे न्यूमीनेटर नूं ते डिनोमीनेटर दे विच डेरीवेटिव करांगे। हर जगह ते ये चीज़ जिहड़ी अपने कोल अप्लाई होनी है जो रूल फेल हुंदा। तो क्वेश्चन की हैल्प दे नाल समझते हैं टाइप 2 दे विच असी किवें सॉल्व करना है क्वेश्चन नूं। फाइंड द पार्टिकुलर इंटैगरल तुसीं देखो पार्टिकुलर इंटैगरल फाइंड करने लई ही कहा जाता है। तो जो साडे कोल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका असी पार्टिकुलर इंटैगरल फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टैप ये होगा कि इसनूं सिंबॉलिक फॉर्म च लिख लो d² - 3d + 2 × y = sin AX कहने का मतलब sin 2x। इत्थों क्लीयर हो जाती है गल कि a की वैल्यू की अपने कोल +2। इत्थे तुहाडे मन दे विच एक सवाल आ रहा होना है कि इत्थे तो साडे कोल d² भी है d भी है
पर ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਡੀ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਊਬ ਆ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਕੁਆਡਰਲੇਟਰਲ ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਊਬਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਡੀ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ ਡੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੀ ਬਾਚੂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ D4 ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ D4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ ਡੀ ਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ d ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ ਡੀ। ਆਹ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਅਤੇ ਆਹ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਏ ਸਕੇਅਰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਬਚਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਪਾਵਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ 5 ਪਾਵਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ 7 ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਦੀ 1 ਪਾਵਰ ਬਚੂਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਡੀ ਬਚ ਜੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਡੀ ਬਚ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 1/f ਆਫ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਇਹ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ sin 2x। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਆਹ ਫਾਰਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆਹ ਫਾਰਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਹਜੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਲਓ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਟਾਈਪ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨ AX ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 2 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਆਫ 2 ਸਕੇਅਰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ -4 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, -4। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਡੀ ਬਚਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੁੱਟ ਕੈਪੀਟਲ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -4। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਕੈਪੀਟਲ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, -4 -3d ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, +2 sin 2x ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲੋ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਅਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਲੋ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਾਸਟ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, -2 + 2 -2 -3d ਬਚ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ sin 2x ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਏ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ 1/d ਆਫ ਕਿਊ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਿਊ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ -2 ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ 2 + 3d ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 + 3d, ਤਾਂ 2 + 3d ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 2 + 3d ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਮਤਲਬ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ -4। ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲਾ ਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਡੀ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, d/dx ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਊਗੀ।
मैं की कीता डिनोमीनेटर दे विचों माइनस कॉमन कढ़ लिया, नीचे बन गया 2 + 3d, ऊपर आ गया -1। फिर मैं की करता रैशनलाइज, जो रैशनलाइज किया तो ऊपर अपने कोल की बन गया माइनस, ऊपर आ गया अपने कोल 2 - 3d, नीचे कितना आ गया अपने कोल 4 - 9d², इत्थे बच गया अपने कोल sin 2x रजे। तो इत्थे अपने कोल जदों माइनस नूं अंदर मल्टीप्लाई किया तो sin 2x नूं भी नाल मल्टीप्लाई किया, sin 2x नूं भी किया मल्टीप्लाई। तो अपने डिनोमीनेटर दे विच तां d² है, सिंपली पुट कर देंगे -4, न्यूमीनेटर च की करांगे अंदर मल्टीप्लाई करांगे माइनस नूं भी तो sin 2x नूं भी, तो -2 sin 2x, ठीक है। डिनोमीनेटर दे विच हजे सॉल्व करते हैं, +3d sin 2x। दोबारा देखो मैं की कीता, पैन का कलर चेंज करके समझाना सानू, जिहड़ा ये माइनस है इनू भी मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन करती, sin 2x उन्होंने भी मल्टीप्लाई करता, एक टाइम तो ही 2 स्टैप अप्लाई करते, तो अपने को बन जूगा -2 sin 2x +3d sin 2x। हुण इत्थे d का मतलब की है, डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x दे। डिनोमीनेटर नूं सॉल्व करते हैं, 4 - 9 × -4 कितना आ गया अपने को, माइनस माइनस क्या आ गया जी +36, 36 + 4 कितना आ गया 40 आ गया। तो डिनोमीनेटर भी सॉल्व हो गया, तो न्यूमीनेटर भी सॉल्व कर लाँगे असी बाय डेरीवेटिव। इत्थे रह जू -2 sin 2x डिवाइडेड बाय 40, इत्थे आ जाऊगा अपने को +3/40, डेरीवेटिव ऑफ sin 2x विद रिस्पैक्ट टू x, ये बन जू अपने को cos 2x तो 2x का 2 कट कटा के कितना आ जाऊगा 20, तो 3/20 cos 2x अपने को बच जू। तो आंसर कितना आ जाऊगा राजे 3 cos 2x डिवाइडेड बाय 20 -1/20, क्योंकि यह कैंसल हो जाएंगे, 1/20 sin 2x। ये अपने को पर्टिकुलर इंटैगरल आ गया अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कुछ नहीं है, दसन दे विच टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन ये स्टैप्स बड़े ईजिली हो जाने, थोनों आ स्टैप तक करने की जरूरत ही नहीं, सीधा तुसी इत्थों शुरू करोगे, इत्थों शुरू करोगे भर के वैल्यू देख लोगे, जे डिनोमीनेटर दे विच साडे कोल डी बच रहा तो वह रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज करन तो डी उपर चला जाऊ न्यूमीनेटर च, जिन्हों असी डेरीवेटिव कह दें। पर जे अपने कोल सिर्फ डी बचे नीचे, ना वह कोफिशिएंट होवे भी तो उसको कॉमन कर सकते हैं, पर नाल उहदे होर कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, जिवें अपने कोल इत्थे की बच रहा सीगा, इत्थे अपने कोल डी दे नाल आह -2 2 बच रहा सी, कॉमन कढ़ लिया इस ना माइनस, तो अपने कोल इत्थे 2 बच रहा सीगा, जे कल्ला इत्थे 3d हुंदा तो 3 तो बाहर कॉमन चला जाता, तो डी की अपने कोल 1/d की बन जाता, इंटीग्रेशन बन जाता। मेरे कहने का मतलब है अगर अपने कोल इत्थे सिर्फ 3d हुंदा 1/3d, तो 3 तो बाहर चला जाता, -1/3, तो असी करते इसनूं किवें लिखते -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। तो इत्थे रजे जी साड़ी टाइप 2 है वो कंप्लीट होंदी है। फिर इस तो देख लें भी अगर साढ़े को किसी होर टाइप का फंक्शन आ जाए, कोई एक्स की वैल्यू आ जाए तो किमें सॉल्व करांगे। एक क्वेश्चन होर है जिहड़ा मैं दे रखा पर्टिकुलर इंटैगरल फाइंड आउट करन दा, तुसीं खुद सॉल्व करना है, तो मैनू कमेंट बॉक्स के जी वैल्यू दसनी है कि यदा एग्जाम्पल का आंसर कितना आया, तो जे अगर कोई डाउट है तो भी मैनू पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के थ्रू। टाइप 3 आ गई अपने को, डिस्कस करते हैं टाइप 3 नूं। टाइप 3 दे विच सानू कहा गया जे तुहाडे कोल QX फंक्शन कोई भी पॉलीनोमीअल गिवन होवे, मतलब कि QX की वैल्यू जे अपने कोल x की पावर m गिवन है, तो उस केस दे विच रजे पहला स्टैप की होगा, तुसी सिंबॉलिक फॉर्म बनानी है, सिंबॉलिक फॉर्म तो बनाने तो बाद 1/f(d) की फॉर्म दे विच लिख लेना उस फंक्शन नूं, नाल अपने कोल x की पावर m, सेम ही प्रोसैस चल रहा है, पर ये असी की करना है उन्होंने बराबर लिख सकते हैं f(d) की पावर -1 इंटू x की पावर m दे। f(d) की पावर -1 का की मतलब है भी असी इसनों डिनोमीनेटर तो न्यूमीनेटर के विच लै गए, पर इत्थे कुछ गल्लां ध्यान दे विच रखण वालियां ने, किहड़ी गल्लां ने। पहली गल की है रजे कि जिहड़ा साडे कोल d होवेगा, आ फंक्शन 1/f(d) लिखिएगा, ये जी d की पावर है उसनों असी असेंडिंग ऑर्डर के लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर के लिखना है,
किस तरह, मान लो साढ़े कोल 1/d³ प्लस 3d² प्लस 2 इदां दे रखा है, तो असी इसनूं किवें लिखांगे, असी इसनूं लिखांगे 1/2 d की पावर 0 है प्लस 3d² प्लस d³ कहना मतलब वाधे क्रम के विच लिखना है, आ रॉन्ग है आ करैक्ट है फॉर्म। तो ध्यान रखना जो साढ़े कोल फंक्शन पॉलीनोमीअल गिवन है, सब तो पहला की स्टैप है असी उसकी सिंबॉलिक फॉर्म पता करांगे, फिर 1/f(d) × xm फॉर्म दे विच बनावांगे, तो जी डी की पावर है वो अपने कोल असेंडिंग ऑर्डर दे विच होनी चाहिए है। दूसरी गल का ध्यान की रखना रजे, जिहड़ा साडे कोल कॉन्सटेंट होगा f(d) दे विच कॉन्सटेंट ऑलवेज 1 होगा, जिमें कि मैं इत्थे कहा सी कि 1/3d³ प्लस 3d² प्लस 3, मान लो इदा सूँ f(d) दे रखा, तो इत्थे सब तो पहला तो असी इसनूं असेंडिंग ऑर्डर च लिखना है, कहना मतलब 3d0 या 0 3d² प्लस 3d³। फिर दूजी चीज़ जी चैक करनी है भी जोड़ा कॉन्सटेंट है, क्योंकि d0 लिख लो चाहे कला 3 लिख लो एको ही गल है, तो जोड़ा कॉन्सटेंट है 3 इनू 1 बनाना है। 1 किवें बनावांगे, डिवाइड करके 1 प्लस 3d²/3 तो नाल की आ जाऊगा अपने को d² प्लस 3/3d³ आ जाऊगा। जदों ये दोनों फॉर्म तैयार हो गई इस तो बाद साढ़े कोल तो थर्ड फॉर्म की होगी ब्रैकेट ऑफ f(d) पावर -1, कहना मतलब ये पूरी की पूरी टर्म असी कित्थे लै जाएंगे, न्यूमीनेटर दे विच। जदों असी उसनूं न्यूमीनेटर दे विच लै जाएंगे तो उस तो बाद असी बायनोमीअल थ्योरम की हैल्प के नाल इनू एक्सपैंड कर लाँगे। किस तरह की एक्सपेंशन हो सकती है, या तो साढ़े कोल 1 - x की पावर -1 होगी, जिसनों असी एक्सपैंड कर सकते हैं 1 + x + x² प्लस x³ प्लस x⁴ प्लस अप टू सो ऑन, तो या फिर साढ़े कोल 1 + x की पावर -1 की एक्सपेंशन हो सकती है, क्योंकि उपर हमेशा -1 होगा। सारी की सारी ये फंक्शन जोड़ा असी उपर लै जाएंगे, टर्म उपर लै जाएंगे तो -1 पावर आ जूगी। तो -1 पावर लिए दो तरह की एक्सपेंशनस ने, या तो 1 - x की पावर -1 आऊ, तो या फिर 1 + x की पावर -1 आऊ। जो 1 - x की पावर -1 आया तो उसकी एक्सपेंशन इस तरह है, अगर 1 + x की पावर -1 आया तो उसनों असी 1 - x प्लस x² x³ प्लस x4 -x5 प्लस इदा अल्टरनेट मतलब साइन होणगे जदों साडे कोल इस तरह की एक्सपेंशन होगी। तो हुण जिहड़ा रजे असी इस एग्जाम्पल नूं करके देखते हैं, ये पूरे के पूरे प्रोसीजर के थ्रू असी डिस्कस किया जो कि सब तो पहला जिहड़ा साडे कोल फंक्शन है उसनूं जिहड़ा है वो 1/f(d) की फॉर्म दे विच लिख लो। सिंबॉलिक फॉर्म बनानी है वो तो ऑलरेडी बार बार मैंने दस्सण की जरूरत नहीं। जदों असी सिंबॉलिक फॉर्म बना ली तो 1/f(d) की फॉर्म च बना लेना है। फिर उस तो असी देखना भी जी डी की पावर है वो असेंडिंग ऑर्डर च होवे, कॉन्सटेंट हमेशा 1 होना चाहिए। उस तो बाद जी पूरी की पूरी फंक्शन है डी की फॉर्म के बन जूगा, उन्होंने उपर लिया उन्हें पावर -1 कर देनी है। फिर उस तो बायनोमीअल थ्योरम की हैल्प के नाल उस एक्सपेंशन जो असी एक्सपैंड कर लेना है। इत्थे अजे साडा क्वेश्चन खत्म नहीं होंदा, इस तो बाद जो स्टैप है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के सानू पर्टिकुलर इंटैगरल फाइंड आउट करने लिखा गया। जो असी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा तो सानू पता लगे भी ये नॉन होमोजीनियस है, तो फंक्शन सानू की दे रखा, वो दे रखे पॉलीनोमीअल। तो पॉलीनोमीअल के वास्ते असी की करांगे, ये सारे स्टैप्स नू फॉलो करांगे। सब तो पहला स्टैप की है, सिंबॉलिक फॉर्म च लिखना d² - 3d प्लस 2 कॉमन आ जाऊगा y = x के। सैकेंड स्टैप की है, जो फंक्शन डी की फॉर्म के बन गया तो उसमें असी लिख सकते हैं 1/f(d) की फॉर्म के 1/d² - 3d प्लस 2 × x इस फॉर्म के असी लिख लिया। फिर असी क्या सीगा कि फंक्शन जोड़ा साडे कोल असेंडिंग ऑर्डर च होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर च लिखांगे तो 1/2 - 3d प्लस d² × x आ जू। फिर असी क्या सी भी जी साडी कोल कॉन्सटेंट है वो वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए। 1 बनाने वास्ते असी की करांगे, डिनोमीनेटर चों 2 कॉमन ले लाँगे तो 1/2 आ जाऊगा। इत्थे अपने कोल बन जाऊगा 1 - 3/2d प्लस d²/2 नाल इत्थे क्या आ जू x आ जाऊगा। तो साडे कोल ये दोनों स्टैप जोड़े फॉलो हो चुके हैं। फिर ये जो स्टैप फॉलो हो गए उस तो बाद असी की करांगे रजे थर्ड स्टैप फॉलो करांगे 1/2
1 माइनस 3/2d प्लस डी स्केयर बाय 2 इनू सारे किते लै जाएंगे न्यूमीनेटर दे विच लै जाएंगे तो पावर की हो जूगी -1 हो जूगी। हुण असीं किहड़ी फॉर्म दे विच बनाउणा हैगा 1 माइनस एक्स या फिर 1 प्लस एक्स की फॉर्म दे विच। तो साडे कोल इत्थे अगर ध्यान दईए तो 1 माइनस एक्स की फॉर्म बन रही है, ये अपने कोल किहड़ी फॉर्म बन रही है 1 माइनस एक्स की फॉर्म बन रही है। आ पूरी की पूरी वैल्यू मैं ब्रैकेट च लिख लूँगा, उस तो बाद माइनस कॉमन कट के तो अपने कोल की बन जूगी 1 माइनस एक्स की फॉर्म बन जूगी। देखते हैं अगले स्टैप 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस 3/2 डी प्लस डी स्केयर बाय 2 ये अपने कोल की आ गया एक्स आ गया। कॉमन कटन की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसनों असी एक्स मान लैंने। तो ये उपर जो असी बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करांगे 1 माइनस एक्स की पावर -1 वाली तो अपने कोल रजे ये वैल्यू कितनी आ जूगी, वो आ जूगी अपने कोल 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स कितना अपने कोल 3/2 डी प्लस डी स्केयर बाय 2। तुसीं देखो दोबारा कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये अपने कोल की है 1 माइनस एक्स की फॉर्म बन गई। एक्स की वैल्यू कितनी है, आ अपने कोल एक्स की वैल्यू है। माइनस कॉमन नहीं लैना गा, ना ही अपना ये माइनस इनकलूड करना है। -3/2 नहीं आऊगा, इत्थे प्लस ही आऊगा। क्यों? क्योंकि आ अपने कोल एक्स की वैल्यू है, आ अपने कोल की है जनरल वैल्यू। तो आप जो कंपेयर किया तो एक्स की आ गया 3/2 डी प्लस डी स्केयर बाय 2। उस तो बाद फिर की नैक्सट टर्म की होएगी प्लस 3/2 डी प्लस डी स्केयर बाय 2 ਇਹਦਾ होल स्केयर। इदा ही ये चलती रहूगी ब्रैकेट। इत्ते हुण ये सीरीज़ का तो एंड ही नहीं, पर यह किवें डिसाइड होगा कि असी कित्थे रुकना है एक्सपेंशन विच, है ना। ये एक्सपेंशन दे विच असी कित्थे जाके रुकना है ये बारे नहीं पता। तो ब्रैकेट दे विच जिहड़े अपने कोल डी है उहदा मतलब की है डेरीवेटिव, डी का मतलब की अपने कोल डी बाय डी एक्स डेरीवेटिव। ब्रैकेट के बाहर की है साडे कोल एक्स, इत्थे साडे कोल एक्स है जी नाल बाहर, इत्थे ब्रैकेट दे एक्स आऊगा, ये अपने रह गया सी। तो ब्रैकेट के बाहर की है एक्स, जदों एक्स नूं अंदर मल्टीप्लाई करांगे आ एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा पूरी एक्स ब्रैकेट दे नाल। तो जदों असी एक्स नूं मल्टीप्लाई करांगे फर्स्ट टर्म नाल तो सिर्फ एक्स रह जाऊगा, तो जदों एक्स नूं मल्टीप्लाई करांगे सैकेंड टर्म नाल तो वह बन जू डी एक्स। कहने का मतलब एक्स का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स का आंसर 1 आ जाऊगा। जो असी एक्स नूं मल्टीप्लाई करांगे इस दे नाल मतलब डी स्केयर दे नाल तो अपने कोल क्या जू एक्स ऑफ डी स्केयर, या फिर इनू असी की लिखांगे डी स्केयर एक्स बाय 2। तो जो असी एक्स का 2 बार डेरीवेटिव करांगे तो आंसर कितना आ जाऊगा अपने कोल 0 आ जाऊगा। तो कहने का मतलब जो अपने कोल डेरीवेटिव का ऑर्डर हायर है मतलब मोर दैन 1 है तो उस केस च अपने कोल वो टर्म 0 बन जूगी। तो जो इस दे नाल मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर 0 आऊगा। हुण इत्थे की अपने कोल 2 है तो एदा स्केयर प्लस 2ab, तो हमेशा पावर जी अपने को 1 तो ग्रेटर आऊगी, डी की गल कर रहे हैं। तो इत्थे नाल भी जो एक्स की मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर सारे नाल 0 आऊगा, ये सारे नाल। फिर इस तो बाद क्यूब आऊगा, क्यूब दे विच भी हायर ऑर्डर चला गया डेरीवेटिव, वो केस दे विच भी एक्स दी नाल जो मल्टीप्लाई करके फिर डेरीवेटिव फाइंड आउट करांगे तो हमेशा आंसर 0 आऊगा। तो इसलिए साडे कोल सिर्फ किहड़ी टर्म्स बचनगियां, आही टर्म्स बचनगियां। तो जो असी यही टर्म्स बचनगियां तो फिर सारा सॉल्व करने की जरूरत है, सिर्फ आही टर्म्स नूं लिख लेने इनटू एक्स। तो जो इसनूं सॉल्व करांगे तो अपने को आजू 1/2 एक्स प्लस 3/4 डी एक्स। तो आंसर कितना आ गया अपने को x/2 प्लस 3/4। तो दोबारा देख लेने क्वेश्चन नूं। सब तो पहला की कीता रजे असी सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड आउट की। सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड आउट करने तो बाद 1/f(d) फंक्शन की फॉर्म के असी इसनूं फंक्शन नूं लिख लिया। जो 1/f(d) की फॉर्म के लिख लिया फिर असी क्या भी उस तो बाद असी डिसेंडिंग ऑर्डर के लिखनिया ने पावर डी दियां डिनोमीनेटर के विच। जो डिसेंडिंग ऑर्डर के असी पावर्स नूं लिख लिया फिर कॉन्सटेंट भी जिहड़ा साडे कोल 1 होना चाहिए सी, कॉन्सटेंट नूं इत्थे असी की कर लिया 1 बना लिया बाय टेकिंग कॉमन 2। फिर उस तो बाद असी क्या भी जिहड़ा अगला स्टैप है कि उसनूं न्यूमीनेटर दे विच जाके -1 पावर कर देनी है फंक्शन की। जो -1 पावर होगी तो अपने को 2 सीरीज़ बन गई, कि एक तो 1 माइनस एक्स की पावर -1, एक 1 प्लस एक्स की पावर -1। इस केस दे विच साडे कोल 1 माइनस एक्स की पावर -1 वाली सीरीज़ बन रही है। तो इत्थे अपने को आह पूरी की पूरी वैल्यू की है एक्स है, ना कि -3/2 डी।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/2 ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1 + x + x² ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ x ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨਾਲ ਤਾਂ x ਬਚੂਗਾ। ਫਿਰ x ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 3/2d ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੂਗਾ 3/2dx ਬਚੂਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3/2 ਕਿਉਂਕਿ d ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਤਾਂ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਤਾਂ 1 ਆ ਜਾਊ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ x ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ d²/2 ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ x ਦਾ ਤਾਂ 0 ਆਊਗਾ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 0 ਆਊ, 4 ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 0 ਆਊ, 5 ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 0 ਆਊ। ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਆਊਗਾ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ 0 ਆ ਰਿਹਾ। ਬਚਿਆ ਕਿ 1 + 3/2d, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 + 3/2d x 1/2 ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/2x + 3/2dx ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਉਹ 1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x/2 + 3/4। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ d ਨੂੰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੋਰਥ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ qx ਦੀ ਵੈਲਿਊ e ਦੀ ax v ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ v ਕੀ ਹੈ, v ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ e ਦੀ x ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਟਾਈਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਕਹਿੰਦੇ v ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ v ਜਾਂ ਤਾਂ sin ax ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ cos ax ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ e ਦੀ ax ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਟਰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪ 4 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ v ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ m ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ sin ax ਜਾਂ ਫਿਰ cos ax ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ e ਦੀ ਪਾਵਰ ax ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ q ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ v ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ 4 ਬਣ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ e ਦੀ ax v ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1/f(d) ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ d ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 1/f(d) ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ e ਦੀ ax ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ e ਦੀ ax ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ d ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ d + a ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, d ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ d + a ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ e ਦੀ ax ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। d ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ d + a ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ e ਦੀ x ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ v ਜੋ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ x ਦੀ m sin ax ਜਾਂ ਫਿਰ cos ax ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਦਿਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ e ਦੀ x ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ v ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ d² - 2d + 4 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ a ਦੀ x sin x ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ sin x ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ v ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ sin x। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ sin x ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ, ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ 1/d² - 2d + 4 e ਦੀ x sin x ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਟ d = d + a ਤੇ ਇੱਥੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ ax ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨਾ 1x, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ 1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ
डी की जगह तो की पुट करांगे d+1 पुट करांगे इस फर्स्ट इक्वेशन के विच, तो अपने को आ जाऊगा राजे 1/d+1 का होल स्केयर -2d+1 +4 तो ई दी एक्स मैं क्या सीगा काम कंप्लीट हो गया, इस करके असीं इसनों लैफ्ट हैंड साइड पर लै जाएंगे। इधर बचा अपने को साइन एक्स। तो हुण तुसीं इस पूरी की पूरी टर्म का पार्टिकुलर इंटैगरल फाइंड आउट करना है। उही साडे कोल कंसैप्ट बन गया जो असीं साइन एक्स या फिर कॉस एक्स के वेले यूज़ किया सीगा पार्टिकुलर इंटैगरल फाइंड आउट करने लई। सब तो पहला थोड़ा जिहा इसनों सिंपलीफाई करांगे तो ए दी एक्स नीचे आ जाऊगा अपने को d² +1 +2d -2d -2 +4 ए दी सॉरी इत्थे आ जाओ अपने को साइन एक्स, तो अपने को 2d नाल 2d कैंसल आउट हो गया, बचा कि +1 -2 +4 तो कितना आंसर आ गया अपने को +3। तो सिर्फ अपने को d² +3 बच गया डिनोमीनेटर दे विच। तो ई दी पावर x 1/d² +3 × साइन एक्स। तो हुण इस टर्म का असीं की फाइंड आउट करना है पार्टिकुलर इंटैगरल, जिहड़ी कि ऑलरेडी असीं डिस्कस किया सी। किवें डिस्कस किया सी कि d² की जगह पर पुट कर दो -a², कहना मतलब -1², कहना मतलब -1 पुट कर दो तो साडे कोल पार्टिकुलर इंटैगरल आ जाऊगा। किवें इसनों ब्रैकेट दे विच लिख लो, तो कितना आ गया राजे ए दी एक्स इत्थे अपने कोल कितना बन गया 1/d² की जगह पर की लिखांगे -1 +3 इत्थे क्या जो अपने कोल साइन एक्स। आंसर कितना आ गया 1/2, तो अपने को आंसर आ गया ए दी पावर x/2 साइन एक्स। तो ये जस्ट वो क्वेश्चन है जिहदे विच दो अपने को फॉर्मूले लग जाते हैं। पहला असीं की कीता ए दी पावर x नूं जिहड़ा बाहर कढ़ता, बाहर कढ़न तो बाद असीं क्या भी जो बाहर कढ़ना है उदों की करना है डी की जगह पर d+a पुट करना है। जदों असीं ई दी एक्स नूं बाहर कढ़ना है तो उदों पुट करना डी की जगह पर d+a। जदों d+a पुट कर दिता तो साडे कोल ए फॉर्म बन गई जिहड़ी कि पार्टिकुलर इंटैगरल फाइंड आउट करने वास्ते सीगी जदों अपने कोल QX बराबर होवे साइन AX या फिर कॉस AX दे। जदों अपने कोल ए फॉर्म बन जाती है असीं क्या सी उत्थे d² की जगह पर -(a²) पुट कर दिओ, तो असीं पुट करता, पुट करन तो साडे कोल आंसर आ गया। तो ये अपने कोल टाइप सी 4 जिहदे विच ई दी पावर x नाल मल्टीप्लाई सीगा v। हुण देखते हैं टाइप 5th। टाइप 5th विच कहंदा जे अपने कोल QX बराबर है x × v दे। हुण की है जे अपने कोल x रिप्रजेंट कर रहा पॉलीनोमीअल नूं, कहंदा जे साडे कोल पॉलीनोमीअल दे नाल मल्टीप्लाई होवे कोई फंक्शन तो साडे कोल वो 5th टाइप बन जाती है। पॉलीनोमीअल दे नाल अगर साडे कोल फंक्शन मल्टीप्लाई है तो हुण इत्थे फंक्शन किहड़ा होऊगा, v की वैल्यू की हो सकती है, या तो v हो सकता साइन AX या फिर हो सकता कॉस AX, तो या फिर अपने कोल इत्थे v की वैल्यू की हो सकती है e दी पावर AX। इन्ना तो इलावा अगर अपने कोल v की वैल्यू आउंदी है तो वो लिए सानू यूनीवर्सल मैथड अप्लाई करना पैना, और इस तो इलावा साडे कोल होर कोई भी मैथड नहीं हैगा। पर जे अपने कोल v की वैल्यू साइन AX आवे या कॉस AX आवे या फिर e दी AX आवे तो उस केस दे विच असीं ये जिहड़ा अपने कोल शॉर्टकट उन्होंने अप्लाई करांगे। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही अप्लाई होंदी गल कि अगर अपने कोल एक खास टाइप्स ने जिहदे विच अपने कोल QX की वैल्यू एक खास टाइप्स जिहड़ियां पढ़ रहे हैं यही आउणगियां तां ही अप्लाई होणगे, अदरवाइज जिहड़े साडे कोल यूनीवर्सल मैथड ही अप्लाई होऊगा। तो जे अपने कोल QX बराबर आ जाए x × v दे तो उस केस दे विच सब तो पहला असीं 1/f(d) लिखांगे x(v). उसनूं सॉल्व करने का की तरीका है, कहते x एज इट इज़ 1/f(d) × v प्लस d/dt 1/f(d) × v। इसनूं समझ लो कि इहदा की मतलब है इस पूरी की पूरी टर्म का। पहला इस टर्म दे विच कहंदा तुसीं x नूं जदों बाहर कढ़ लोगे, सिंपली बाहर कढ़ लो x नूं, तो फिर तुसीं 1/f(d) × v इहदा पार्टिकुलर इंटैगरल फाइंड आउट कर लो। जदों असीं x नूं बाहर कढ़ लांगे, पहला x नूं डायरैक्ट बाहर कढ़ लो। जदों अपने कोल e दी x × v सी तो e दी पावर ax नूं e दी पावर ax × v सी, तो असीं e दी पावर ax नूं बाहर कढ़न वास्ते की कीता सी d की जगह पर d+a पुट कीता सी। पर जदों अपने कोल इत्थे x मल्टीप्लाई है v दे तो x नूं बाहर कढ़न वास्ते सानूं किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है ऐड सबट्रैक्ट करन दी, सिंपली असीं x नूं बाहर कढ़ लेना।
1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी है, तो इसका की फाइंड आउट कर लेना पर्टिकुलर इंटैगरल। उही फॉर्मूला लगा के जिहड़ा कि अपने टाइप दी होगी वी दी, जे साइन ए एक्स है, कॉस ए एक्स है, या फिर ए दी पावर ए एक्स है ना। उस तो बाद कहना प्लस डेरीवेटिव करना है किहदा 1 अपॉन एफ ऑफ डी का, डेरीवेटिव करना है 1 अपॉन एफ ऑफ डी का। जदों आ डेरीवेटिव सॉल्व कर लिया, डेरीवेटिव सॉल्व करके जो आंसर आऊगा तो नाल मल्टीप्लाई वी नूं करके वह पर्टिकुलर इंटैगरल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन की हेल्प दे नाल समझते हैं, फिर थोड़ा जिहा होर ईजी हो जाऊगा। तो पहला स्टैप सब तो पहला की है कि इनू सिंबॉलिक फॉर्म दे विच लिखो डी स्केयर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो तुसीं देखो इत्थे अपने कोल पॉलीनोमीअल दे नाल साइन एक्स मल्टीप्लाई है, तुहाडे कोल इत्थे एक्स ए दी ए एक्स भी हो सकता है, एक्स इंटू कॉस ए एक्स भी हो सकता है, एक्स इंटू साइन ए एक्स भी हो सकता है। तो साडे कोल एक्स इंटू साइन ए एक्स वाला इत्थे टाइप हैगी। तो पहला स्टैप सी असी सिंबॉलिक फॉर्म दे विच बना लेना है। दूसरी स्टैप की है कि असी 1 अपॉन एफ ऑफ डी दी फॉर्म दे विच फंक्शन नूं लिख लेना है। तो वो आ जाऊ 1 अपॉन डी स्केयर माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स आ गया। फिर जो अपने कोल यह बन गया तो असी क्या सीगा कि पहले स्टैप च एक्स नूं एज इट इज़ बाहर लिख लो, तो 1 अपॉन डी स्केयर माइनस 1 इंटू साइन एक्स रह के लिखिया रह जूगा। हुण तुसीं देखो भी ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ फाइंड आउट किया सी पर्टिकुलर इंटैगरल, सेम क्वेश्चन सीगा आई थिंक। तो तुसीं ईजली ਇਹਦਾ पर्टिकुलर इंटैगरल फाइंड आउट करके एक्स नाल मल्टीप्लाई कर देना। फिर उस तो अगे की सीगा प्लस डी बाय डी टी ऑफ किहदा डेरीवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ डी जो कि डी स्केयर माइनस 1 है, नाल किया जो अपने कोल साइन एक्स। सॉल्व करते हैं एक्स इत्थे रजी हुण अपने कोल इहदा पर्टिकुलर इंटैगरल फाइंड आउट करन दा की तरीका सीगा। इहदा फाइंड आउट करन दा तरीका सी भी तुसीं डी स्केयर दी जगह ते माइनस ऑफ ए स्केयर पुट करो, तो कितनी वैल्यू है ए दी 1, मतलब कि माइनस 1 स्केयर कहने का मतलब माइनस 1 पुट करना है डी स्केयर की जगह पर। तो ये आजू अपने को माइनस वन साइन एक्स आ जाऊगा प्लस डेरीवेटिव करना जी असी 1 अपॉन डी स्केयर माइनस 1 का। साइड ते करके देख लेने ताकि ईजी हो जाए। डी बाय डी टी ऑफ 1 अपॉन डी स्केयर माइनस 1 जिसनों मैं न्यूमिनेटर दे विच लै जाना, डी स्केयर माइनस 1 की पावर कितना आ जू माइनस 1 आ जूगी। कितना आ गया माइनस 1 अगे आ गया, तो इत्थे बच गया अपने को डी स्केयर माइनस 1 की पावर माइनस 2। तो जो डी स्केयर का डेरीवेटिव करांगे तो वह बन जू अपने को 2d माइनस 0। डेरीवेटिव तो सारे आउंदा ही है, तो कितना आ गया अपने को माइनस 2d अपॉन डी स्केयर माइनस 1 का स्केयर बन गया। तो यही वैल्यू जी असी इत्थे पुट कर देंगे, तो अपने को इनू सॉल्व करके कितना आ गया राजे माइनस 2d ब्रैकेट डिवाइडेड बाय डी स्केयर माइनस 1 का स्केयर नाल किया जो अपने को साइन एक्स। थोड़ा जहा होर सिंपलीफाई कर लिए तो ये बन जू अपने को माइनस एक्स बाय 2 साइन एक्स, क्योंकि आ तो सॉल्व हो चुकी है, साइड साढ़े को कंप्लीट हो चुकी है। उस तो बाद की बन गया अपने को माइनस 2d अपॉन डी स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर इंटू साइन एक्स। हाँ जो डी है इसमें एक बार तुम भुल जाओ, क्योंकि इस डी हजे असी यूज़ नहीं करांगे, इसका हजे कोई काम नहीं है। मेन काम की है कि जी साढ़े को आह फॉर्म बन गई, ये की बन गई अपने को एन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू साइन ए एक्स वाली फॉर्म। तो जो ये फॉर्म बनती है तो असी कहते डी स्केयर की जगह पुट करना माइनस ए स्केयर, क्योंकि असी पर्टिकुलर इंटैगरल फाइंड आउट करना ना जी। असी एक साइड का तो कर चुके हैं, इस साइड का पर्टिकुलर इंटैगरल हो चुका, ਇਹਦਾ फाइंड आउट करना है। पहला डेरीवेटिव किया फिर पर्टिकुलर इंटैगरल फाइंड आउट करांगे, तो अपने को कितना आ जाऊगा डी स्केयर की जगह पर पुट करांगे माइनस 1 स्केयर माइनस 1 पुट करांगे, तो आ जू माइनस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 2d अपॉन माइनस 1 का होल स्केयर इंटू साइन एक्स। चलो जी साइन एक्स का काम भी खत्म हो गया। माइनस 1 माइनस 2 का होल स्केयर माइनस 2 का होल स्केयर अपने को कितना आ गया प्लस 4, तो ये कैंसल होकर कितना बचा इत्थे 2। तो सारा कैलकुलेशन करके अपने को आह वैल्यू आ जाती है माइनस एक्स बाय 2 साइन एक्स माइनस डी बाय 2 साइन एक्स। तो हुण अपने को माइनस एक्स बाय 2 साइन एक्स का तो कुछ नहीं करना, लेकिन आ जी डी है यदा मतलब कि दसिया मैं डी का मतलब होंदा है डी बाय डी एक्स। तो यदा मतलब असी डेरीवेटिव करना है साइन एक्स का विद रिस्पैक्ट टू एक्स।
जो कि बड़ा ही ईजी है। cos x तो नीचे कितना आ गया 2 आ गया। तो आ अपने कोल पर्टिकुलर इंटैगरल आ गया ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੇ ਨਾਲ v ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਨਾਲ sin x ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ x ਇੰਟੂ v ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਨॉन ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾਓ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/f(d) ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ ਰਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ x ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, 1/f(d) ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਾਲ v ਲਿਖ ਦਿਓ। x ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x² ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ x² + 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, 1/d² - 1 sin x। ਤਾਂ ਆਹ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ 1/f(d) ਦਾ, ਮਤਲਬ 1/d² - 1 ਦਾ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f(d) ਹੈ ਤਾਂ 1/f(d) ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ d, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ v ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਕਿ sin x ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ sin x ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ D² ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -(a²) ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ -1 ਕਿਉਂਕਿ d² -a² ਹੈ ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -1। ਤਾਂ ਆਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨੀਚੇ -2 ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ, ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ -2d/d² - 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ sin x। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਟਰਮ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, d² ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ -a²। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ d² ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -1। ਤਾਂ ਇੱਥੇ d² ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, -1 -2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ 2 ਬਚ ਗਿਆ। ਆ d ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ sin x। ਫਿਰ d ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ sin ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, cos ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਅੱਜ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ 5th ਟਾਈਪ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਟਾਈਪਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਲੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ DPP ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਧੰਨਵਾਦ।